Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्लीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज का श्लोक पढ़ेंगे हम। श्लोक तीसरे स्कंद का 28वां अध्याय है और श्लोक क्रमांक 41। भूतेन्द्रियांतः करानाथ प्रधान जीव संनित्यात् आत्म तथा प्रेहक पृष्ठा भगवान ब्रह्म संनित। Bhuta, the five element, Indriya, the senses, Anta, Karanata from the mind, Pradhanata from the Pradhana, Jiva Samjinitat from the Jiva soul, Atma Tata the Paramatma, Tata so Pritaka different, Drishta the seer, Bhagavan the personality of Godhead, Brahma Samnita called Brahman. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: the Supreme Personality of Godhead, who is known as Parabrahma, is the seer. He is different from the Jiva, soul or individual living entity, who is combined with the senses, the five element and consciousness. Purport: a clear conception of the complete whole is given herewith. The living entity is different from the material element and the supreme living entity, the personality of Godhead, who is the creator of the material element, is also different from the individual living entity. This philosophy is propounded by Lord Chaitanya as Achinta Bheda Bheda Tattva. Everything is simultaneously one with and different from everything else. The cosmic manifestation created by the Supreme Lord by his material energy is also simultaneously different and non-different from him. The material energy is non-different from the Supreme Lord, but at the same time, because that energy is acting in a different way, it is different from him. Similarly, the individual living entity is one with and different from the Supreme Lord. This simultaneously one and different philosophy is the perfect conclusion of the Bhagavata school, as confirmed here by Kapila Dev. Living entities are compared to the sparks of a fire. As stated in the previous words, fire, flame, smoke, and firewood are combined together. Here, the living entity, the material elements, and the supreme personality of Godhead are combined together. The exact position of living entity is just like that of the spark of a fire. They are part and parcel. The material energy is compared to the smoke. The fire is also part and parcel of the Supreme Lord. In Vishnu Puran, it is said that whatever we can see or experience either in the material or spiritual world is an expansion of the different energies of the Supreme Lord. As fire distributes its light and heat from one place, the Supreme Personality of Godhead distributes his different energy all over his creation. The four principles of the Vaishnava philosophic doctrine are Shuddha Advaita, purified oneness, Dvaita Advaita, simultaneous oneness and difference, Vishishta Advaita and Dvaita. All four principles of Vaishnava philosophy are based on the thesis of Srimad Bhagavatam explained in these two verses. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम सबका हार्दिक स्वागत करते बहुत खुशी प्राप्त होती है कि आप सबका संग प्राप्त हो रहा है करके। विशेष करके मैं जानता हूँ आप बहुत सालों से ये भागवत की कथा यहाँ पे साधु संग कर रहे करके। यहाँ आने से पहले मैं एक भक्त के साथ चर्चा कर रहे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो उनको आग्रह किया था भक्तों ने कि आप बहुत सारे भक्त लेके मत जाइए करके, आप थोड़े गिने चुने जो बहुत गंभीर है उनको लेके जाइए, क्योंकि भक्त के समाज में भी हमें थोड़ा चुनाव करना आना चाहिए कि कौन भक्ति को सही में गहराई में स्वीकार कर चुके हैं या कोई ऐसे मजा या ऐसे नाम के लिए आते हैं करके। तो हमें ऐसे वैष्णव का संग हमेशा लेना चाहिए जो भक्ति में श्रवण करना, भगवान की जप करना, भगवान की अलग अलग प्रकार की अर्च विग्रह की सेवा करना या प्रभुपाद जी के आंदोलन में कुछ कार्यरत करने के लिए बहुत तीव्र इच्छा रहती है। ऐसे भक्तों का अगर संग करेंगे तो उनके सानिध्य में, उनके संग में हमारे भी एक इच्छा प्रकट हो जाएंगी ताकि हम भगवान की सेवा कर सके। और ये शक्ति या ये प्रेरणा और ये प्राप्त होती है हमें प्रातःकाल कार्यक्रम, खास करके भगवान का नाम जब हम करते हैं, भगवान का कथा सुनते, तो ये शक्ति हमें प्राप्त होती है। बहुत बार हम सुनते हैं ऐसे हमारे महान महान आचार्य हैं जो अपने भौतिक या शारीरिक स्तर पे देखेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी सोते थे, फिर भी पूरे दिन में इतनी सेवा करने से ऊर्जा शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो कभी कभी हमारा शरीर इतना शक्तिशाली नहीं रहता है कि इतना साथ दे, लेकिन कभी कभी जब भगवान की सेवा करने की बहुत तीव्र इच्छा रहती है तो शरीर साथ देता है। जैसे हमारे गोवा में भी इस्कॉन गोवा के लिए पूरे हमारे जो अध्यक्ष है इसग्रे शुभिलास को भी पूरे गोवा के लिए प्रातःकाल कार्यक्रम रहता है। तो हर एक सेंटर को ये ऑर्गेनाइज करने की, होस्टिंग करने की एक सेवा रहती है। तो फरवरी जो महीना है ये हमारी सेवा है। तो मैंने देखा अभी थोड़े 2-3 दिन से हम कर रहे हैं सेवा। तो जैसे ये सेवा प्राप्त होती क्या होता है, उत्साह बढ़ जाता है। आमतौर पे तो हम कैसे तो आलाम सुनते भी नहीं थे, लेकिन अभी आलाम की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि मन में है कि सेवा करनी है। तो क्या होता है, तुरंत एक इच्छा प्रकट होती है कि ये करें। तो ऐसे भक्तों का साथ होना चाहिए, ऐसी सेवा स्वीकार करनी चाहिए जहां पे हम अपने जितने हो सके प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में थोड़ा सा योगदान कर सके। हम थोड़ा सा इस कथा में हम 2 भाग करेंगे। एक भाग तो ये श्लोक के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और मैं पूरा विस्तार में नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ कि सारे भक्त तात्पर्य पढ़ के आते। मैं पिछली बार जब आए थे यहाँ पे तो देखा कि भक्त सारे पढ़ के आते करके। नहीं तो क्या होता, बहुत जगह पे हम देखते हैं जब कोई श्लोक दिया जाता है या कोई कथा में जाते लोग पढ़ के नहीं आते। तो कथा शुरू होने से पहले उसके संबंध में अगर हम पढ़ के आएंगे, उसके बारे में अगर कुछ दुविधा है और प्रश्न है तो पूछ पाएंगे, या जो कथाकार जो कुछ कहते हैं उसके बारे में और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं बहुत आनंदित हूँ कि आप पहले से इसका ये पालन कर रहे हैं करके। और ऐसा होना भी चाहिए कि पहले से हमें थोड़ा बहुत पढ़ के आना चाहिए। तो ये अहंकार के लिए नहीं कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, कि ये दर्शाने के लिए कि हमारी जो समझ है और अच्छी तरह से हो जाएंगे करके। क्योंकि कथा में एक कथाकार सारे मुद्दों को स्पर्श नहीं कर पाता, ये समय में नहीं होता है, कभी कभी भूल भी जाते हैं। तो इसलिए अगर हम प्रभुपाद जी ने जो दिए हुए तात्पर्य को पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ पाएंगे।
तो प्रभुपाद जी ने अपनी पूरी शक्ति ये तात्पर्य में लिखा है। तो हाल ही में हमारे मैं वरिष्ठ भक्तों से पूछ रहा था, ये सुनने के बाद तो मेरी बहुत दिनों से नींद उड़ गई है करके। तो मैंने अभी इतने साल से तो मैं सोच रहा था, अभी इतनी बार मैंने भागवतम पढ़ा है, 3-4 बार भागवतम पढ़ के हो गया, भगवत गीता कितनी बार पढ़ा है करके। तो मैंने पूछा, हाँ प्रभु जी कितनी बार पढ़ के हमें तृप्त होना चाहिए? उन्होंने कहा कम से कम आपके ये तृप्त की तो बात आती नहीं, क्योंकि नारद मुनि का उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक कहा कि जो भागवत रहता है ये सदा सेवया, सदा होना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, ये चलता रहना चाहिए। ऐसा कोई सोचता है मैंने एक बार भागवतम पढ़ दिया, 2 बार पढ़ दिया, 3 बार पढ़ा, बहुत हो गया, ये सही चेतना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं गदाधर पंडित के साथ जब वो वार्तालाप करते थे, भागवत कथा करते थे, तो वो एक कथा को 100 बार कम से कम सुनते थे। और हम सोचते कि 4 बार सुन लिया तो मुझे आता है करते, ये सही चेतना नहीं है। हमें बार-बार श्रवण करना चाहिए। फिर भी मेरे खुशी के लिए मैंने पूछा उनको कि कितनी बार कम से कम पढ़ना चाहिए करके, तो उन्होंने कहा कम से कम भागवत को 15 या 20 बार पढ़ना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि कभी-कभी भक्त पूरे जीवन में 1 बार नहीं पढ़ पाते और हमें 15 या 20 बार पढ़ना चाहिए करके। और उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा, हम देखते हैं चतुर्श्लोकी भागवतम जो है ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं दी है। तो आप यकीन नहीं करो, ब्रह्मा जी के प्रसंग में आप गए रहेंगे, आपने थोड़े समय पहले पढ़ा रहेगा। तो ब्रह्मा जी ने ये जो श्लोक है, जो भगवान ने उनको ज्ञान दिया, उसका अध्ययन ध्यान से 3 बार किया। तो ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ, उनके 4 सर है। इतना होने के बावजूद भी उन्होंने ये भागवतों को 3 बार कुछ बोलने से पहले उन्होंने ये किया। इसलिए हमारी भी खास करके जो प्रचार कार्य में लगे हैं, इनका भी एक कर्तव्य है कि निरंतर भागवत का श्रवण करते रहे, निरंतर प्रभुपाद की वाणी सुनते रहे। मेरे जीवन में तो मैंने नियम डाला है, अगर आपको ये पसंद आता है तो नम्रता से पालन भी कर सकते हैं कि बहुत बार हम इस आधुनिक जगत में जहाँ पे सारा इंटरनेट का जमाना, यूट्यूब पे इस्कॉन डिजायर ट्री इतना सारा प्रवचन उपलब्ध है, तो इस भागदौड़ में प्रभुपाद जी के कभी-कभी हम प्रवचन सुनना, मैं देखता हूँ जब भी भक्तों से मिलता हूँ और उनको पूछता हूँ कि प्रभुपाद जी के पिछली बार आपने प्रवचन कब सुना था, तो बहुत बार उनको याद भी नहीं रहता कब सुनाया गया। किसी का तो 1 साल हुआ रहता रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य है, तो हम एक वरिष्ठ भक्त से बात कर रहे थे। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया क्या करो करके, तो प्रभुपाद जी का जितना आप प्रवचन सुनते हैं तो रोज सुनना चाहिए, उसका आधा समय आप अपने गुरु महाराज का सुन सकते हो। तो अगर प्रभुपाद जी का प्रवचन 1 घंटा सुन रहे हो दिन में, तो थोड़ा अपने गुरु महाराज का भी सुन सकते हो, कोई दीक्षित भक्त है करके। या अगर कोई आपसे प्रेरणा रहेगा, आप दीक्षा नहीं हुई है, तो आपके कोई शिक्षा गुरु रहेंगे या जिससे आप प्रेरणा लेते, उनका उसका आधा का आधा मतलब 1/4। अगर प्रभुपाद का 1 घंटा है, गुरु महाराज का आधा घंटा, और 1/4 मतलब 15 मिनट आप और किसी का सुन सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में हम प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने के लिए समय नहीं देते, इसलिए जो तत्व सिद्धांत है ठीक से समझते नहीं। दूसरा है, गुरु महाराज की भी वाणी को ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते, और यहाँ वहाँ की बहुत सारे प्रवचन जिसमें रोमांच रहते, बहुत सारी कथाएं रहते जिसमें मनोरंजन रहते, ऐसी कथाएं सुनने में आनंद महसूस करते। सुनो नहीं, ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा जिससे हम प्रेरणा लेते हैं उनका सुन सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। जैसे कोई हम प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद में चावल रहता है, दाल रहता है, सब्जी रहती है, और साइड में छोटा सा मिठाई या छोटा सा आचार रहता है। अगर कोई सोचता है आचार जो थोड़ा लेना चाहिए, वो मैं पूरा दिन भर आचार खा के जिंदा रहूंगा करके, आचार से निवारण करूंगा, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सेहत के लिए जो प्रामुख्य अन्न रहता है वो आप चावल ले सकते हैं या रोटी ले सकते हैं, तो ये हमारा प्रामुख्य होना चाहिए। तो ये हमारा उसे कोर्स मील कहते हैं। तो कोर्स मील में क्या होना चाहिए, प्रभुपाद प्रभुपाद जी का या तो हम पढ़ रहे, ये नहीं तो प्रवचन सुनना चाहिए। जैसे मैं मेरी व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, मेरी शुरुआत होती है दिन की प्रभुपाद जी के प्रवचन से। तो नहाने के लिए इत्यादि थोड़ा समय लगता है। तो प्रभुपाद जी की ये एक छोटा सा मशीन आता है, अगर आपने आपके वहां पे मिलता है क्या मालूम नहीं, लेकिन वैकुंठ वाणी करके बहुत छोटा सा एक मशीन आता है। मुझे लगता है यहाँ पे अगर आपको देखना है, ऐसे ऐसे छोटा छोटा मशीन आता है, ऐसा दिख रहा है आपको, तो ये इसमें प्रभुपाद जी के 2000 से भी ज्यादा प्रवचन उपलब्ध रहते हैं। प्रभुपाद जी ने कौन से, उसका एक बुकलेट भी आता है, कौन से प्रवचन है, उसका क्या डिटेल है करके सब पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत जैसे मैंने कहा कि प्रभुपाद जी का प्रवचन, उसके आधा समय थोड़ा गुरु महाराज जी का सुनना चाहिए, और बाकी थोड़ा समय बचे, फिर भी बच रहा है समय, तो अन्य प्रचारक का ले सकते हैं। अगर ये थोड़े समय के लिए आप पालन करेंगे, कोई भी इसका पालन करता है ना, तो उनकी वाणी आप देखोगे, उनकी वाणी में प्रभुपाद जी का झलक दर्शाएगा।
तो प्रभुपाद जी जब तत्व सिद्धांत की बात करते तो ये तात्पर्य में हम देखेंगे प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि कैसे भगवान का ये जो तत्व दिया है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेद अभेद तत्व को दिया है। और आखिरी में प्रभुपाद जो चारों संप्रदाय है इस तत्व का पालन करते हैं। और विशेष करके ये पिछला वाला और ये श्लोक, दोनों श्लोक मिलके भगवान के जो अवतार स्वयं कपिल देव है, कपिल मुनि ने ये अचिंत भेद अभेद तत्व का प्रचार किया, जहाँ पे हम भगवान से समान भी है और भगवान से अभिन्न है। हम भगवान के गुण के रूप में एक है लेकिन भगवान के विभिन्न भी है करके। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक उदाहरण देते हैं, तो हम दो उदाहरण लेंगे। एक उदाहरण जो हम जानते हैं कि अग्नि, जो अग्नि रहती है उसका एक छोटा सा कीट रह जाता है, स्पार्क, फायर एंड फायर स्पार्क। तो अग्नि बहुत बड़ी रहती है, ये भगवान के समान है। और उसकी जो छोटी कीट रहती है ये जीव के समान है। तो गुण की दृष्टि से देखेंगे तो दोनों में समानता है, लेकिन संख्या की दृष्टि से देखेंगे अग्नि बहुत बड़ी रहती है और ये कीट बहुत छोटी रहती है। प्रभुपाद अन्य तात्पर्य में और दो उदाहरण देते हैं जानने के लिए। ये कल हम हमारे कॉन्ग्रेगेशन थोड़ी माताओं के साथ हम चर्चा कर रहे थे, तो पूछ रहे थे कि हमारे संबंध में कुछ उदाहरण दे दो करके। तो मैं कह रहा था कि हम सोना जो पहनते हैं छोटा छोटा, तो सोने के गहने रहते हैं, तो छोटा सोने का गहना है और एक रहती सोने की खान जो बड़ा सोना है। तो सोने की खान है जो भगवान के समान है और छोटे छोटे गहने जो है ये है हमारे जीव तत्व के समान है। तो दोनों समान रहते हैं गुण के रूप में, लेकिन जो खान है बहुत बड़ी है, इसलिए जीव तत्व को अनु कहा गया है, मतलब छोटे। और दूसरा जो भगवान को कहा है विभु, मतलब बड़ा। तो ये भी प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। और तीसरा, ये हमारे गोवा में लोग ये बहुत पसंद करते हैं उदाहरण, क्योंकि गोवा में समुद्र तट है, ओशन है यहाँ पे। तो समुद्र का उदाहरण भी प्रभुपाद देते हैं कि समुद्र का थोड़ा पानी को इकट्ठा करके घर में लाता है। तो समुद्र का जो छोटे आपके लोटे में जो पानी है और समुद्र गुण से एक है, लेकिन फिर भी ये लोटे का पानी ये छोटा सा है और समुद्र बहुत बड़ा है। तो बड़ा मतलब भगवान परमा, जो हम देखते हैं परमात्मा भगवान स्वयं है, और छोटा जो है हम जीव है। तो ये उदाहरण देते हैं। तो प्रभुपाद अन्य जगह पे और भी उदाहरण देते हैं। तो प्रभुपाद जी की एक विशेषता ऐसा है कि एक साधारण से साधारण जो पहली बार आया है और प्रभुपाद जी की अगर पुस्तक पढ़ता है, प्रभुपाद जी ने न्याय इस्तेमाल करते हुए ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण दिए कि कोई ज्ञान भी नहीं रखता रहे वो थोड़ा तो समझ में आएगा। इतना तो सबको ज्ञान रहेगा कि समुद्र का पानी तो बहुत ज्यादा रहता है, संख्या ज्यादा रहती है, और लोटे का पानी तो बहुत कम रहता है। क्योंकि मेरा संबंध जो मेरी पढ़ाई हुई है, मैंने मरीन साइंस में की है, तो मैं ओशनोग्राफी में पढ़ाई की है। तो मुझे मालूम है कि समुद्र में पानी में क्या क्या रहता है और उसका पानी निकालने का उसमें क्या क्या तत्व रहते हैं करके। तो संख्या के दृष्टि से वो समान नहीं रहते। तो ये पहला सिद्धांत है। और विशेष करके जो चारों संप्रदाय, जो श्री संप्रदाय हो या हम देखते हैं रुद्र संप्रदाय हो या कुमार संप्रदाय हो और हमारी ब्रह्म संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय इसी चार प्रकार के इसका पालन करते। तो प्रभुपाद ये लिखते हैं चार उसे तत्व इसमें कहते हैं। शुद्ध अद्वैत इसका पालन होता है। दूसरे इसमें हम लिखते हैं द्वैत अद्वैत। तीसरे इसमें होता है विशिष्ट अद्वैत और चौथा है द्वैत। ये चारों प्रकार जो चारों जो प्रामाणिक संप्रदाय है इसी को प्रचार पालन करते। और चैतन्य महाप्रभु ने से बहुत और अच्छी तरह से जो अचिंत भेद अभेद तत्व देके सारी संप्रदाय को एक बहुत सुंदर तरीके से प्रख्यान की कि कैसे जीव भगवान के समान भी है और कैसे जीव भगवान से अभिन्न भी है करके। ब्रह्मा जी ने भी अपनी ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में इसका स्पष्टीकरण साफ साफ कर दिया है। ये श्लोक हम बहुत बार कंठस्थ करते हैं, बहुत सारे वक्तों के श्लोक आता है, लेकिन इसका अर्थ हमें जानना चाहिए कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी ये दूसरी लाइन में कहते, पहले तो ईश्वर परम कृष्ण कहते, तो भगवान के गुण के बारे में सत चित और आनंद के बारे में कहते। सत का मतलब भगवान शाश्वत है, तो चित का मतलब भगवान पूरे ज्ञान से भरे हुए, और आनंद का मतलब भगवान आनंद से भरे हुए। मुझे याद है मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो पहली बार मैंने ये जो श्लोक सुना तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरे मन में यही प्रश्न था कि एक व्यक्ति मरने से उनको डर लगता है, क्यों डरता है करके। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है अमर, आत्मा है सत। क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो ये सच्चित आनंद स्वभाव जो है, सच्चित आनंद गुण एक आत्मा में भी है। तो इसलिए कोई मरना नहीं चाहता। अगर किसी को कहेंगे एक मूर्ख व्यक्ति आत्महत्या करता है या जो शरीर से बहुत त्रस्त हो गया, पक गया, एक साधारण व्यक्ति अपने शरीर को त्याग करने के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि
सबको मालूम है आत्मा का स्वरूप है शाश्वत चित। तो दूसरा एक आता है कि एक व्यक्ति के मन में प्रश्न आता है कि मुझे सारा ज्ञान होना चाहिए। जब कोई पढ़ाई करता है तो कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमें इच्छा होती है इसका उत्तर हमें आ जाता तो कितना अच्छा होता। हाल ही में हम रामायण के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो हमें राम जी के धनुष्य के बारे में नाम पूछ रहा था। तो थोड़े भक्तों को मालूम था लेकिन जिनको मालूम नहीं था वो सोच रहे थे काश मुझे नाम आता तो मैं भी बोल पाता और मेरा मेरा भी थोड़ा ध्यान प्राप्त होता। तो हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी होती है। तो ये दूसरा स्वरूप या दूसरा स्वभाव है एक आत्मा का सचित। और तीसरा है आनंद। आनंद लेना हर एक व्यक्ति का आत्मा का स्वभाव ही है। हम हर कार्य करते हैं आनंद के लिए। हम यहाँ तक प्रसाद में भी जब लेते सेवन करते हैं हमें आनंद आए तो और कथा सुनने में भी हम आनंद स्वीकार करते हैं। तो ये आनंद एक आत्मा से अभिन्न है। तो आनंद एक स्वभाव है और विशेष करके भगवान की जब सेवा में आते हैं तो ये सबसे उच्च स्तर का हम आनंद प्राप्त करते हैं जिसे हम सेवा आनंद कहते हैं। सेवा में जो आनंद है अन्य और किसी में आनंद नहीं है। आप सोचिए एक साधारण भी घर में भी एक कोई व्यक्ति अगर माँ है या पिताजी है तो माँ कभी कभी क्या करते हैं अगर थोड़ा कम कुछ प्रसाद है करके तो अपने बच्चों को अपने पति को देती है। उनको कभी कभी थोड़ा कम मिलता है कभी मिलता नहीं है लेकिन उनको सेवा करने में इतना आनंद प्राप्त होता है। तो आनंद की हम तुलना नहीं कर सकते। तो जस्ट यहाँ पे आने से पहले चैतन्य महाप्रभु और उनके निकट के पार्षद थे गोविंद उनके सेवक भी थे। उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो हम देखते हैं कि गोविंद चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे और चैतन्य महाप्रभु उनसे सेवा स्वीकार कर रहे थे। आप एक नियम की दृष्टि से देखेंगे तो गुरु भाई से कैसे हम सेवा स्वीकार कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जब गोविंद आए और उन्होंने कहा कि ईश्वरपुरी जो दोनों के गुरु हैं उन्होंने कहा कि आपकी सेवा के लिए भेजा है करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं मैं आपको कैसे स्वीकार कर सकता, आप तो मेरे गुरु भाई है करके। आप मेरे आधार नहीं, आपसे मैं सेवा कैसे स्वीकार कर सकता, आप मेरे सेवक कैसे बन सकते। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे भी सलाह ली। उन्होंने जाके सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए और सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछते हैं कि क्या किया जाए करके। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है स्वयं बृहस्पति के अवतार है। उन्होंने कहा देखिए आप दोनों के गुरु है ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी ने गोविंद को आदेश दिया कि आप जाके आपकी सेवा करो। तो आपकी सेवा अभी क्या होनी चाहिए कि उसकी सेवा स्वीकार करो। उनकी सेवा स्वीकार करना आपकी गुरु की सेवा करना हो जाता है। ये थोड़ा तत्व हमें जानना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु गोविंद की सेवा कर रहे स्वीकार कर रहे थे लेकिन सही में क्योंकि वो उनके गुरु का आदेश था तो गुरु की सेवा ही कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई ऊपर नीचे की ये नहीं है। श्रीपाद रामानुचार्य के जीवन में भी हम देखते हैं उनके एक सेवक थे उनके शिष्य थे। उनके लिए पलंग तैयार करते थे और कभी कभी खुद सोते थे और देखते थे पलंग सही है क्या नहीं करके। गुरु के पलंग के ऊपर सोना बहुत बड़ा अपराध है लेकिन वो सो के देखते थे कि अच्छा है करके। रामायण में हम देखते हैं शबरी के बारे में। शबरी भगवान राम को बेर देने के पहले स्वयं खाती थी। हम भगवान को जूठा नहीं खिला सकते लेकिन वो क्यों खा के देखती थी देखने के लिए ये खट्टा खास करके कभी कभी वो कड़वा होता था क्योंकि ये जंगली बेर था तो वो चख के देखती थी और भगवान ने उनकी सेवा स्वीकार की। तो ये बहुत सुंदर तत्व है कि सेवा में जो आनंद है वहां और नहीं प्राप्त हो सकता। तो ये श्लोक में अन्य और बहुत सारे मुद्दे प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके बारे में लेकिन प्रामुख्य हमें जानना चाहिए कि एक जीव है और जो भगवान है ये दोनों अभिन्न है। हाँ, श्वेतस्वर उपनिषद में भी दो पंछियों का उल्लेख किया जाता है जो पंछी बैठे हुए हैं और एक पंछी खा रहा है तो कभी कभी मीठा खा रहा है कभी खट्टा खा रहा है तो वो जीव है उसको अलग अलग। और दूसरा पंछी क्या कर रहा है देख रहा है। इसलिए आप तात्पर्य में आप ट्रांसलेशन में पढ़ो जो शब्द इस्तेमाल किया सियर। तो जो परमात्मा रहते केवल देखते हैं वो केवल हमें देख रहे हैं लेकिन जो आत्मा रहते हैं वो नाना प्रकार के भोग और आनंद में लगा हुआ है। तो कभी कभी उसे अच्छा परिणाम प्राप्त होता है कभी कभी उसे विकट परिणाम प्राप्त होता है। दोनों उनकी प्रतिक्रिया के ऊपर है। वो जैसा करेगा वैसा वो फल प्राप्त करेगा। ये सिद्धांत पहले और आखिरी में प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी लिखते चार संप्रदाय भी उनका अंतिम क्या है कि जीव और भगवान अलग है करके। मध्वाचार्य तो ऐसा दो उंगली लेके ही बैठते कि दो अलग है करके पूरा। तो चारों संप्रदाय इसका मान्यता करते जो वैष्णव प्रामाणिक संप्रदाय करके। और जैसे मैंने कहा था मैं थोड़ा सा वरादेव भगवान के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। मे भी एक 5 मिनट के लिए मैं चर्चा करता हूँ। मे भी 9 2 या 9 दिन तक मैं रुकता हूँ। तो वरादेव के बारे में थोड़ी सी मुझे क्योंकि आने पिछले 30 तारीख को वरा द्वादशी हुई थी तो थोड़े दिन पहले तो पूरी ये कथा ऐसी एक बहुत अच्छी धारणा है कि हम हमारे वैष्णव कैलेंडर जो रहते दिनदर्शी का उसे अपना मित्र बनाए। पहले से देख के रखिए अभी क्या आने वाला अभी कौन सी तिथि है करके। मैं जानता हूँ आप पहले से यहाँ पे आपका बहुत अच्छा संग है कि पहले से भक्तों को प्रेरणा देते हो कि ये अभी तिथि आने वाली है ये अभी उत्साह है। जैसे
नित्यानंद त्रयोदशी मनाएं, अभी थोड़े दिनों में गौर पूर्णिमा आने वाले। तो ये बहुत अच्छी आदत है। इससे क्या होता है कि हमेशा हम उत्साही रहेंगे। नहीं तो हम भक्ति में क्या होता है थोड़ा सा फीके पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे तैयारी करते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे और थोड़ी अगर सेवा स्वीकार करें, अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, मैं ये करूंगा, भगवान के लिए ये सेवा अर्पण कर, माता ये सोच सकती है मैं भगवान के लिए ये भोग बनाऊंगी। तो बहुत सारी, तो पूरा हमारा जीवन, पूरे उतने सारे दिन रहते हैं, हम चेतना में रहेंगे भगवान की सेवा में और बहुत अच्छी तरह से हम भक्ति कर पाएंगे। तो वरादेव में हम देखते हैं सबसे पहले ये वरादेव का जो अवतार भी हुआ, तो वो उसकी शुरुआत ही होती है जब चतुर्कुमार जब वैकुंठ में आते और 7वें दरवाजे पे जय विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल है चतुर्कुमार को रोक देते। तो हम देखते हैं जय विजय एक तो चतुर्कुमार को रोक दिया, उनको थोड़ा सा बुरा लगा, उन्होंने उनको श्राप दे दिया। ये एक कारण है कि उनको राक्षस बन के 3 जन्म तक आना पड़ा। तो वो आते हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आते, बाद में रावण कुंभकर्ण के रूप में आते और आते शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। लेकिन इसके अलावा ये द्वारपालों ने और एक गलती उनसे हुई थी कि उनका सेवा है भगवान को कोई विघ्न ना हो करके। तो एक बार जब लक्ष्मी देवी भी भगवान से विष्णु से मिलने आ रहे थे, उनके स्वामी है नारायण, उनसे मिलने आ रहे थे, तो लक्ष्मी देवी को भी इन्होंने रोक दिया। तो इस स्थिति को कहते हैं मर्यादा व्यतिकरण। हमें हम क्या करना चाहिए, किसके साथ क्या बात करना है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसे अनुमति देनी चाहिए, किसे रोकना चाहिए, ये थोड़ा नियम जानना चाहिए। इतने बड़े द्वारपाल है, उन्होंने लक्ष्मी देवी जो भगवान की पत्नी है अर्धांगिनी, उनको रोक दिया। तो लक्ष्मी देवी बाद में जाके भगवान को बताए, तो भगवान ने कहा कि मैं देखेंगे करके उनको। तो भगवान ने उनको सजा भी दी, तो उनको यहाँ पे 3 जन्म तक लेना पड़ा। उसके साथ-साथ भगवान की एक इच्छा प्रकट हुई थी कि मुझे वीर्य रस का आस्वादन करना है, युद्ध करना है करके। अब युद्ध करने के लिए किसके साथ युद्ध करूँ मैं? किसी के साथ युद्ध करूँगा तो उनको एक झापड़ मारूँगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो युद्ध, ये वीर्य रस मुझे अनुभव करने के लिए मेरे पार्षदों को भेज देता हूँ करके। तो लक्ष्मी देवी का बहाना था, लक्ष्मी देवी को भी उन्होंने अप्रसन्न किया था। चतुर कुमार ने भी श्राप दे दिया उनको क्योंकि रोक दिया था और भगवान को ये वीर्य रस चखना था, इसी कारण से भगवान ने उनको भेजा है। पहले जो राक्षस बन के आते जिनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। तो हिरण्याक्ष जो थे वो इतना शोषण किया और पृथ्वी से इन्होंने इतना सोना निकाल दिया कि पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ गया। तो हम देखते हैं भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है, तो भगवान ने इस पृथ्वी संतुलित होके जब वो गर्भोदक सागर में नीचे गिरी, तो भगवान ने बहुत सुंदर रूप लिया जिसे हम वरादेव कहते हैं और पृथ्वी को वापस पुनर्स्थापित किया। लेकिन हम ध्यान से पढ़ेंगे, ये 2 अवतारों का है। एक श्वेत वरा जो अभी हमारा वराचल जहाँ पे भगवान श्वेत एक सफेद रंग में आते पृथ्वी की स्थापना करते, यहाँ इस वरा में भगवान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध लड़ाई नहीं होती उनकी। लेकिन जब भगवान ने चक्षुषा मनु का जब मनवंतर चल रहा था, वहां पे भगवान का जो वरा अवतार का उल्लेख होता है उसे रक्त वरा कहते, वहां पे भगवान ने युद्ध किया था, लड़ाई की थी। तो भगवान हम देखते हैं कि अपने वीर्य रस को चखने के लिए अपने निजी पार्षद जो जय विजय उनको ही बेच के उनके साथ लड़ाई करते और भगवान ये सेवा के रूप में उनसे सेवा स्वीकार करते। तो भगवान ने उनको एक तरह से भेजा यहाँ पे, लेकिन वहां पे भी इस भौतिक जगत में भी उनसे सेवा करके लिया। ये पहला है। दूसरा एक छोटा मैं एक तत्व कहता हूँ। रामायण में इसका एक सुंदर उल्लेख आता है। ये बात लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता देवी से कहते हैं कि जब मारीच जो रावण का मामा भी कहते हैं, तो वो आए थे एक हिरण के रूप में, सोनेरे हिरण के रूप में। तो उन्होंने देखा कि ये जो हिरण जब आया, बाकी के हिरण उनसे दूर दूर भाग रहे थे क्योंकि बाकी के हिरण को पता चला कि ये राक्षस है करके, इसलिए बाकी के हिरण ये मायावी जो मारीच थे इसके पास नहीं आ रहे थे। तो लक्ष्मण कह रहा है कि ये मारीच है, हे सीते हे माते आप सुनो, ये सही में हिरण नहीं है करके, ये राक्षस है। ये सीता देवी सुनने के लिए तैयार नहीं हुई थी। तो वही सिद्धांत जब भगवान वरादेव आते एक सुअर एक वरा के रूप में, तो उन्होंने इतना बखूबी उनका रूप लिया था कि बाकी के सुअर जब उनको वरादेव को देखा वो पास आ रहे थे। उनको लग रहा था ये तो मेरे बिरादरी का है, तो भगवान वरादेव के पास आ रहे थे, उनको सूंघ रहे थे। तो भगवान किसी का रूप लेते, किरदार लेते तो बखूबी लेते। हम ब्रह्म विमोचन लीला में देखते हैं ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालकों और बछड़ों को छुपाया, 1 साल के लिए नहीं थे। तो भगवान ने अपने आप को विस्तार किया, जितने सारे बछड़े घर गए वो उनका स्वभाव ऐसे था, जैसे बात करने की पद्धति वैसी थी। जितना खा रहे थे, अगर कोई 2 रोटी खा रहा था 2 ही खा रहा था, भगवान भूल नहीं गए कि 3 खा रहे थे। तो उनकी पद्धति, उनका रंग रूप सब कुछ भगवान ने वैसा ही किया।
बछड़े थे वो वैसे ही बर्ताव करते, उनकी पीठ के ऊपर डब्बा है, लाल रंग है, सब भगवान ने वैसे किया। तो भगवान कोई रूप लेते तो बखूबी लेते, उनका भाव, उनकी सेवा सब कुछ वही लेते। तो ये वरादेव ने किया और भगवान ने देखा कि सारे वरा उनसे पास पास आ रहे करके। तो ये भी हम जानना चाहिए, भगवान कोई किरदार लेते तो बखूबी लेते। इसलिए हम देखते हैं भगवान जब अवतार में आते, खास करके मानव लीला करते, तो बहुत बार लोग समझ नहीं पाते भगवान ने ऐसा किए किया। बहुत सारे लोग भगवान राम के ऊपर आलोचना करते हैं कि कैसा आपका भगवान जिसने अपने स्वयं की पत्नी को त्याग कर दिया, सीता माता को जंगल में भेज दिया। लेकिन वो मूर्ख समझते नहीं कि उन्होंने त्याग नहीं किया, एक अलग एक रस है, उसे विप्रलंब रस कहते हैं। और उन्होंने त्याग करके कहा, जंगल में छोड़ नहीं दिया। लक्ष्मण जी को उन्होंने जानबूझ के कहा कि उस भाग में उनको छोड़ो जहां पे वाल्मीकि वाल्मीकि महर्षि का आश्रम था। तो सीता देवी को बहुत अच्छी तरह से वाल्मीकि मुनि ने उनका ख्याल रखा। उनकी जो 2 संतान भी पैदा हुए, लव कुश का, उनको भी बहुत सुंदरता से उनका देखभाल किया। और वाल्मीकि मुनि ने जब रामायण रचना की, लव कुश को उन्होंने चुना रामायण का प्रचार करने के लिए। तो जो लोग समझते हैं कि भगवान ये मानव लीला करने के लिए वो ऐसा करना पड़ा उनको, क्योंकि एक राजा है, राजा के ऊपर कोई आलोचना, कोई ये कुछ लांछन नहीं लगा सकता। तो बहुत सारे लोग बात कर रहे, सीता देवी जो रावण के पास रुक के आए, उनको कैसे राम ने स्वीकार किया। वो केवल एक ढोबी बात नहीं कर रहे, बहुत सारे अयोध्या धाम में वहां पे चर्चा हो रही थी। तो इससे हमें सीखना चाहिए। हमारे वैष्णव समाज में भी थोड़ा अगर कहाँ से भी चिंगारी होती है, जहाँ पे वैष्णव की निंदा हमें झलक दिखाई देती है, तो हमें तुरंत गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे तुरंत पालन करना चाहिए। कान के ऊपर हाथ रखो और तुरंत वहां से निकल जाओ। अगर हमारा अधिकार है, उनको बोल सकते हैं तो बोलना चाहिए। अगर आप गुरु के स्तर पे तो बोलो, आप गुरु के स्तर पे नहीं हो, नहीं तो काउंसलर मेंटर के स्तर पे नहीं है, तो उनको बोलो प्रभु जी मुझे कुछ तो काम है करके। क्योंकि हम सुनेंगे तो हमारी भक्ति का भी नाश कर बैठे, वो तो बोल के चले जाए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी चेतना, हमारी जो चेतना वो खराब कर देंगे। और उस वो भक्तों को हम जब देखेंगे, उनको बुरी चेतना से देखेंगे। और ऐसी चेतना हमारी भक्ति में प्रगति या खास करके वैकुंठ भगवत धाम गोलोक जाने के लिए बाधा बनेगी। ऐसी चेतना में भगवान के धाम में कैसे जाएंगे, तो वहां जाके भी भगवान के साथ ईर्ष्या करेंगे, भगवान के भक्तों के साथ ईर्ष्या करेंगे, तो वही वापस करेंगे तो वापस आना पड़ेगा। इसलिए जब तक वो शुद्ध चेतना नहीं आती, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और माया देवी का कर्तव्य है कि हमारी चेतना बहुत शुद्ध बने। तो माया देवी की एक सेवा भी है कि हमारी चेतना जब तक शुद्ध नहीं बनती, वो किसी को भगवत धाम जाने नहीं देंगे। तो इसलिए माया देवी स्वयं इस भौतिक संसार की देवी है। हम देखते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में भी, आप यकीन नहीं करोगे, अर्जुन के रथ के ऊपर भगवान कृष्ण स्वयं बैठे हुए और कृष्ण कह रहे हैं जाओ आप पार्वती देवी की उपासना करो, शिव जी की उपासना करो। क्यों कह रहे कि आशीर्वाद मांगो करके? क्योंकि माया देवी जो पार्वती देवी स्वयं है, दुर्गा देवी है, इस भौतिक संसार की देवी है। उनका बहुत सारे नामों में से एक नाम है वैष्णवी। ये हरिदास ठाकुर की शिष्य है। अगर आप वो लीला में नहीं जाएंगे, हरिदास ठाकुर ने माया को भी दीक्षित किया है। तो हमारी एक तरह से गुरु बहन भी होते, हमारी संप्रदाय में आते वो। तो माया देवी की इच्छा है कि हम शुद्ध बने करके, लेकिन वो शुद्ध बनने के लिए वो क्या करती है, हमें बहुत सारी परीक्षाएं देती रहती है। तो ये दूसरा ये था। और मुझे लगता है कि मैं लास्ट कह के रुक जाता हूँ ये वरा भगवान के बारे में। आमतौर पे सुअर जो पशु रहता है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। किसी को अपशब्द बोलने, लोग कहते तू सुअर है क्या, सुअर की तरह खा रहा है, सुअर की तरह है करके। क्योंकि ये बहुत कीचड़ में खेलते रहते, बहुत गंदे रहते। लेकिन भगवान, और आप सोचो अगर ऐसे सुअर आते आपके पास और अपना शरीर ऐसे छिड़कते हैं और पूरा उनका कीचड़, उनके पानी जो है बूंद बूंद आपके शरीर के ऊपर आ जाते, तो हमें बुरा लगता है। हम ऐसे जो रहते हैं सुअर से दूर भागते। लेकिन भगवान वराहदेव ने जब गर्भोदक सागर में गए और ऊपर जब पुनर्स्थापना की और जो पृथ्वी को स्थापना ऊपर की, तो भगवान ने अपने शरीर को झटकाया और भगवान के शरीर से बहुत सारे पानी के बूंदे गिर रहे थे। और सारे ऋषि मुनि जितने थे वो कह रहे थे और चाहिए और चाहिए। इतना आनंद प्राप्त हो रहा था भगवान के शरीर से आए हुए ये सारे पानी से। ऋषि मुनि को, साधु संत को सारे वेद का ज्ञान अंदर से आत्मसार हो रहा था। तो भगवान को जो शरीर का पानी स्पर्श हम अगर करेंगे, तो क्या होता है, जो हम शास्त्र है जो समझ में नहीं आते, जो जटिल रहते हैं, केवल पानी के स्पर्श से क्या होता है, वो शास्त्र वेद हमें समझ में आते। तो कोई कहेगा हमारे लिए वरादेव कहाँ पानी मार रहे, तो किसी भी प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था की, किसी भी मंदिर में जाओ, हरे कृष्णा मंदिर या हरे कृष्ण सेंटर में जाओ, वहां पे जब मंगल आरती रहते, भगवान को सबसे पहले अगरबत्ती धूप अर्पण किया जाता है, भगवान को आरती अर्पण दिया अर्पण किया जाता है। और भगवान को तीसरी वस्तु जो अर्पण की जाती है उसे कहते हैं अर्घ्य। अर्घ्य का मतलब पानी।
पानी जब अर्पण करते वो बाद में भक्त आके हमारे ऊपर मारते, कभी कभी ठंडी में हमें लगता है क्यों क्यों मार रहे हैं करके, वो जब हमारे सर के ऊपर गिरेंगे सारे शास्त्र समझ में आएंगे। अगर गलती से वो गिरा नहीं, जाके वो पानी लेके हमारे सर के ऊपर लगाना चाहिए ताकि हमें शास्त्र समझ में आए। और ये सारे साधु संत कह रहे थे वाह वाह क्या है करके, और वरादेव के बूंदे उनके ऊपर सर के ऊपर ले रहे थे। तो ये भी हमें सीखना चाहिए कि भगवान के जो अर्घ्य रहते, भगवान के महाप्रसाद, उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु जब सुबह सुबह प्रातः काल में महाप्रसाद जगन्नाथ जी का लेके आए, सार्वभौम भट्टाचार्य उठे और तुरंत महाप्रसाद को खाया। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे आप तो उच्च कोटि के ब्राह्मण हो, पहले मुंह तो धो। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, प्रसाद जब आता है तो तुरंत तुरंत स्वीकार करना चाहिए, मत सोचो कि मुंह नहीं धोया। ये नियम ये भौतिक लोगों के लिए, भक्तों को प्रसाद को तुरंत स्वीकार करना चाहिए। हो सके अगर आपके पास सुविधा है थोड़ा स्नान करके मुंह धो के बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य इतना प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी की महाप्रसाद से, तो तुरंत स्वीकार किया उन्होंने। क्योंकि पहले वो इतने बड़े मायावादी थे और बाद में भक्त बन गए, तो उनको इतने सारे साल उनके व्यर्थ गए थे। तो खास करके अगर कोई भक्ति में बहुत देरी के साथ आया है, जिनके, मैं तो भक्ति में जब आया था तो लगभग 22 साल का हो गया था, तो 22 साल हमने गवाए भक्ति नहीं की। जो भक्तों के बच्चे रहते हैं उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है बचपन से भक्ति करने का सौभाग्य। तो हमें ये अफसोस होना चाहिए कि इतने सारे साल गए, इसके लिए हमारी जो भक्ति है 22 साल जो जितने भी आपके नहीं कर पाए थे, और तीव्रता बढ़ानी चाहिए, ताकि हम जैसे परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज इत्यादि आप देखोगे उनकी जीवनी को, वो कम से कम 42 या 42 राउंड कम से कम रोज करते थे। तो उनका क्या था कि इतना सारा समय गया है पहले जब भक्ति नहीं की थी हमने, तो अभी उसका भुगतान करना चाहिए। तो मैं ये छोटा सा है करके हम रुकेंगे यहाँ पे। तो वरादेव से भी हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। आप भक्तों के संग में रहो, उनसे एक दूसरे को प्रेरणा दो। और विशेष करके मैं एक छोटा नियम कह के और एक वरदान कह के भगवान ने दिया जो कह के रुक जाता हूँ। तो भगवान कहते हैं अगर हम दूसरों की भक्तों को कृपा मिल रही, या तो भगवान की कृपा मिल रही किसी भक्त को, या गुरु की कृपा मिल रही, या उनकी वरिष्ठ भक्तों की किसी भक्त को कृपा मिल रही, अगर उनकी कृपा को देख के हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो भक्त जितना प्रगति नहीं करेंगे उनसे 1000 गुना हम प्रगति करेंगे। क्योंकि ऐसी चेतना को कहते हैं निर्मत्सरा। तो भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को बताया क्योंकि अर्जुन निर्मत्सर थे। हमें बुरा नहीं लगना चाहिए उनको कृपा मिली, मुझे नहीं मिला, मेरा नाम अनाउंस नहीं किया, मुझे तो हार नहीं मिला, मुझे प्रसाद नहीं दिया उन्होंने। नहीं, हमें खुश होना चाहिए कि उनको कृपा मिले। तो अगर हम खुश होंगे तो हमें 1000 गुना कृपा मिलती है। तो ये सही में चेतना है कि दूसरों से ईर्ष्या न करते हुए एक साथ हमें एक साथ जाना चाहिए। तो मैं रुकूंगा। बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। अगर किसी का एक या दो प्रश्न है तो हम ले सकते हैं अगर समय है तो, नहीं तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया लगता है आपका। 9 हुआ है मेरे घड़ी पे यहाँ पे, नहीं तो हम विराम देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत ही इट वाज रियली अ वंडरफुल क्लास, जिसमें आपने इतना अच्छे से जो आपने पहले श्लोक में जो अचिंत्य भेदा भेद का जो समझाया था, जिसमें अग्नि का लिया आपने एक उदाहरण, फिर आपने समुद्र का और लोटे के पानी का उदाहरण लिया, सोने की खान का लिया, तो उसमें जो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और भी जैसे मुझे एक याद हो रहा है आ रहा है कि जीव में और ईश्वर में, भगवान में सबसे बड़ा तो ये है कि हम जो है वो फुल इंडिपेंडेंट नहीं है, होना तो चाहते हैं मगर है नहीं, पर भगवान स्वराट है, तो वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे भगवान ने तो 5 साल की उम्र में जब अवतार लिया था, तो वो तो इतने असुरों का वध कर दिया और गोवर्धन पर्वत भी उठा लिया था, पर ये हम तो नहीं कर सकते। तो भगवान जो है वो मतलब सारी उनकी क्वालिटीज हम में है, लेकिन उनमें एब्सोल्यूट है, और वो हमें उनकी बहुत थोड़ी थोड़ी है सारी, हम बस लाइक सैंपल हमारे में है। तो जो आपने अच्छे वो बताया, और दूसरा जो आपने सेवानंद के ऊपर जो बताया वो तो बहुत ही अद्भुत था, कि सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो उसकी बराबरी किसी भी चीज से नहीं हो सकती। बाकी कोई भी जो हमें आनंद बाकी चीजों से मिलता है वो उतना परिपूर्ण नहीं होता। तो जब हम किसी की सेवा करते हैं, और वो सेवा जो होती है मतलब आउट ऑफ लव जो हम करते हैं,
वो उसका कोई बराबरी नहीं होती किसी चीज से। ये आपने बहुत अच्छा एक वो किया। और उसमें जो आपने सच्चित आनंद का भी जो आपने इतना अच्छा बताया कि हम जो चाहते हैं, हम चाहते यही है कि हम हमेशा रहे, वो इसीलिए कि हमारा स्वभाव यही है, आत्मा का स्वभाव यही है। हमें हमें नॉलेज भी वो होती है कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, वो भी एक हमारा स्वभाव है। तो ये सारी चीजें बहुत ही मतलब जिन पे हमारा जनरली ध्यान नहीं जाता है, वो आपने उसको हाईलाइट किया तो बहुत ही ये मतलब सोचने वाली बात है। अच्छा लगा ये बहुत सुन के। और दूसरा फिर आपने दो पंछी का जो उदाहरण दिया था श्वेताश्व उपनिषद से, कि हम जो करते हैं वो तो हम तो उसमें जो आत्मा है, जीवात्मा, वो तो अपना कर्म कर रही है, उसका फल खा रही है। और परमात्मा और जीव में यही है कि वो परमात्मा जो है विटनेस है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो देख रहे हैं। और हम वो ये हमेशा प्रतीक तो दूसरा फिर आपने जो वराह अवतार का इतनी जो तीन जो कारण बताए, वो बहुत सुंदर था वो, कि कैसे क्या कारण था जो भगवान ने अवतार लिया, अ, उनको वीर रस का आनंद। तो उसमें भी जो जय विजय का वो उसमें एक तरीके से वो सेवा ही थी उनके पार्षद, कि उनके आनंद, भगवान के आनंद के लिए उन्होंने राक्षस बनना भी स्वीकार किया, और वो श्राप भी मिला था उनको। तो कई सारे कारण। और फिर आपने जो वो कि वही भगवान में और जीव में क्या फर्क है, कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो सुअर के उसमें भी, वराह के उसमें भी इतने सुंदर, और उनके जो शरीर से पानी की बूंदें जो छिड़कती हैं, तो वो सबके लिए वो एक शुद्ध पवित्र जल है कि वो हमारे ऊपर छिड़का जाएगा तो हमें जो है वो ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन ऑर्डिनरी जो जीव है वो सुअर के रूप में अगर है तो वो तो बहुत ही उससे सब घृणा ही करते हैं। तो ये जो आपने, और दूसरा आखिरी में जो आपने बताया वो तो बहुत ही सुंदर था, कि इसमें अध्यात्म में भी आके हमारी जो जो वो वाली रहती है नेगेटिव इमोशंस की, कि दूसरों की प्रगति देखकर उतना अच्छा ना लगना, या जेलसी होना कि वो ज्यादा प्रगति कर रहा है, तो इससे हमारी अपनी प्रगति रुक जाती है। तो दूसरों की प्रगति देख के भक्ति में भी अगर है तो वो, अगर हम प्रसन्न होते हैं तो उससे हमारी भक्ति भी बढ़ती है। ये आपने बहुत अच्छा जो आखिरी में बताया। तो थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास। और बहुत सारी जो आपने शुरू में वो बताया था कि कैसे हमें सुनना चाहिए, श्रवण कैसे करना चाहिए, कि जितना देर हम प्रभुपाद जी का लेक्चर रोज, और उसका आधा अपने गुरु महाराज का, और फिर उसका एक चौथाई शिक्षा, तो ये भी एक बहुत अच्छा, अगर रेगुलरिटी अगर इसमें रख सकते हैं, रखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा है। नहीं तो हम कब हम वो हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता। तो थैंक यू प्रभु जी फॉर ऑल द वैल्यूएबल इनपुट्स, आपने इतना जो सुंदर सब कुछ समझाया। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सुंदर अतुल प्रभु जी, अतुल नीताई प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। और सॉरी प्रभु जी, बाद में आपका धन्यवाद करते हैं क्लास के लिए, लेकिन आज उन्हें मीटिंग के लिए, मीटिंग ऑफिस में थे ना, तो मीटिंग के लिए जाना पड़ता है बीच में, इसलिए क्षमा चाहती हूँ उनकी तरफ से आपसे कि आप आए, और बीच में कभी कभी इससे जाना पड़ता है इसलिए। इन बहुत लास्ट टाइम भी आप आए ना, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और आज का जो मेन था कि कभी किसी भक्त के प्रति अपने को ईर्ष्या नहीं रखनी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट था भक्ति में। और हम भी देखते हैं ना, जब भी हम इतने सालों से हैं, लेकिन जब भी नया भक्त आता है ना, मुझे तो मैं उनसे बहुत सीखती हूँ। जब भी ऐसे अपने इतने साल हो गए तो ऐसा लगता है ना कि हम बहुत साल हो गए, सब समझ में आया। लेकिन जब नया
भक्त आता है, जैसे अभी विनती माता जी पूरा सार समझाती है कितनी, तो मैं कितना उनसे सीखने को मिलता है कि अरे ये कितने ध्यान से सुनते हैं ना। तो जो नए नए आते हैं ना, तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है। और वो कैसे एकदम जो भी पहली बार सुनते हैं तो कितना उनके अंदर उत्साह होता है कि हाँ ये अच्छा ये भी है। और उनके भाव कैसे रहते हैं, सब नए नए हमारे यहाँ बहुत सारे नए नए आते हैं। तो मुझे जब भी वो आते हैं ना, तो उनसे सीखने को मिलता है। तो इसलिए क्या हम लोग बड़े का तो हाथ पकड़ के रखते हैं ऊपर, लेकिन जो नए हैं ना, उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है ना प्रभु। हर एक भक्त का अलग अलग उनका टेस्ट रहता है। कोई इतना मधुर कीर्तन करता है, कोई अच्छे से सुनता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नए होके भी इतना उनका उत्साह है ना। तो जो आपने कहा वो बहुत तो एकदम सही है कि उनकी वजह से अगर हमको अच्छा लगता है ना, तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। बहुत अच्छा था। और आपसे विनती करते हैं कि ऐसे ही आते रहिएगा और हमें अपना संग प्रदान कीजिएगा। प्रभु बहुत अच्छा लगता है आप आते हैं तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैं भी नया ही भक्त हूँ माता जी। आप हरे कृष्णा। बहुत सुंदर लगता है आपसे सुनने को। विल वेट और विल एंड ओवर हियर। आपका आखिरी में और कुछ तो रहता है ना एंड में? जी प्रभु जी अभी नरसिम्हा आरती हो जाएगी, फिर उसके बाद प्रेयर्स हो जाएगी। ठीक है। और आपको अगर टाइम है तो आप रुक सकते हैं, अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप जा भी सकते हैं। हम लोग ओके। नरसिम्हा आरती करके प्रेयर्स करते हैं। यस सर, मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ कि मुझे भी थोड़ा बाहर जाना है। हरे कृष्णा। ठीक है कल प्रभु की बात जी। करेंगे। वांछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो बोलो, बोलो, बोलो। कृष्ण भी हरे कृष्णा।